Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is lab number 7, and the topic of today's lab is document object model and form validation. I think in the previous lab we have also covered or we have seen the concept of document object model. It helps to use HTML and JavaScript together. So the objective of this lab, in this lab you will learn about DOM and form validation. We will use DOM for form validation. What does the means of form validation? Form validation means that whenever you enter any field in the form, so it will check either you write in correct data or wrong data. You have to assign some uh, valid inputs in your programming code that analyze it or compare it. It will help DOM or it will help JavaScript to recognize that your input field data is correct or no. It is also validate that have you entered any data in the field. For example, there is a form which has many fields like name, phone number, and address or institute name. You have forgotten to write the institute name. When you click the button, when you click submit button, so it will show some error. It by showing the prompt window. So move forward to complete this lab. The HTML DOM, this is the tree chart. DOM is constructed as a tree of objects document. Then root element क्या है इसका HTML. HTML is divided in head and body. In the head we write titles and in the body we write elements like paragraph, H1, any other text. And in head we also define the JavaScript tag. अच्छा जी डॉम हम क्यों यूज करते हैं व्हेन वी नीड टू क्रिएट अ डायनामिक एचटीएमएल. डायनामिक एचटीएमएल, स्टैटिक एचटीएमएल, ये दोनों टर्म्स किससे यूज होती है. स्टैटिक एचटीएमएल मींस once you have created a page and its output is same whenever you run this, उसका आउटपुट हमेशा सेम रहेगा और उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी. जबकि डॉम क्या करते हैं, आप रन टाइम पे कोई भी आउटपुट चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई हेडिंग डली हुई आ रही थी क्लिक मी और उसके पीछे कोई सरप्राइज छुपा हुआ था. आपने जब क्लिक मी के ऊपर क्लिक किया तो आपकी स्क्रीन पे स्टार्स जो है ब्लिंक करने लग गए. या आपका कोई जो है कोई भी काम आप उससे जरिए से परफॉर्म करवा सकते हैं. JavaScript can change all the HTML elements in the page. Like वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसका आपको कलर चेंज करना है. इसका फॉन्ट साइज चेंज करने के जब माउस अगर इस पे पर आए तो इसका कलर चेंज कर दो. माउस की जब जो कर्सर है उस पे पर आए तो कलर चेंज कर दो. या ज़्यादा थक गए आपका जो है लंबे कोड कोई ज़्यादा लंबी कोडिंग नहीं करनी, आपको चेंजिंग करवानी है, तो आप इस तरीके से शॉर्ट टर्म प्रोग्रामिंग करके चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं. आगे हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे. जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द सीएसएस स्टाइल्स इन द पेज. सीएसएस स्टाइल्स भी चेंज कर सकता है. लाइक यू हैव असाइन अ रेड कलर और 12 फॉन्ट साइज टू एनी element or any tag. But in the JavaScript, you can change the color of the font. You can change the size of the font. ये इसकी CSS स्टाइलिंग की चेंजिंग के बारे में मैंने बताया. इट कैन रिएक्ट टू ऑल द इवेंट्स इन द पेज. जावास्क्रिप्ट में सबसे अच्छी बात ये है कि तमाम जो रिएक्शंस या तमाम जो फंक्शंस इसके अंदर क्रिएट होते हैं उसको समझ सकते. किस तरीके से हम इसके अंदर एलिमेंट्स को गेट करते हैं और फिर इसको चेंज करते हैं या फिर इसको जो है अपडेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है उस्मानाज, उस टेक्स्ट का कलर है रेड, बट मैं ये चाहती हूँ जब यूजर इसको पढ़ता हुआ है देखने के लिए कि यूजर ने इसको पढ़ लिया या नहीं पढ़ा तो क्या हो. फिर डेवलपमेंट को आप क्लिक करते हैं और फिर वाले को आप sorry, finding HTML elements by ID, finding HTML elements by tag name,
The easiest way to find HTML elements in the DOM is by using the element ID. पहले भी हम ये कोड यूज कर सकते हैं, हमें जो भी चीज ये जो भी डॉक्यूमेंट सॉरी जो भी वैल्यू चाहिए होती है उसके लिए हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, जो भी इसकी आईडी होती है वो आप वहाँ पे लिख देते हैं। तो उस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा आता है वो हमारे पास गेट एलिमेंट के जरिए रिसीव हो जाता है। Here is a simple code that in the paragraph ID is this paragraph ID assigned as intro, hello world. Then this paragraph ID this example demonstrates the get element by ID. अब इस कोड को देखें इतना और उसको समझाएं मुझे कि इस कोड में क्या करने हैं, फिर आप अपने आप को ही समझाएं कि इस कोड में हमारे पास क्या हो रहा है। तो देखें पहले एक पी का एड है, इस पे हमने एक आईडी असाइन कर दी इंट्रो और उसके अंदर हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड और एक कर दिया इस टाइम। अच्छा एक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसमें आपने इंट्रो लिख दिया। और देखिए ये मैंने बताया था आपको बॉडी के अंदर आपने ये रखना है, ये बॉडी के अंदर रखा स्क्रिप्ट का टैग आप हेड के अंदर भी रख सकते हैं और बॉडी के अंदर भी रख सकते हैं और स्क्रिप्ट के टैग को ऊपर रखते हैं। लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं इसके इसको यूज कर रहे हैं टैग्स को, इसलिए हमने ये ऊपर रखा है पी। अब है एक्स इजिकल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इंट्रो। यहाँ पे हमने इसकी आईडी रखी ना इंट्रो, तो ये हमने इंट्रो लिख दी पैराग्राफ। अच्छा जी यहाँ से क्या हुआ इंट्रो से इसने बोला कि एक एलिमेंट गेट करके लाओ। और ये देखें इसका आउटपुट यहाँ पे पहले हेलो वर्ड लिखा हुआ है, दिस एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेट्स द, यहाँ पे पी का जो पैराग्राफ है पूरा ये लिखा हुआ आ रहा है और द टेक्स्ट फ्रॉम द इंट्रो पैराग्राफ हेलो वर्ल्ड। अभी इसने क्या किया सिर्फ टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके बताया है। यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर टेक्स्ट लिखा होता है, स्क्रिप्ट ने इस टैग को रीड किया और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। आगे वाली कोडिंग के अंदर हम सीखेंगे जो हमने प्रिंट करवाया है हम इसको रन टाइम पे कैसे चेंज कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने यहाँ पे कोई की वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं दी गई, लेकिन असाइनमेंट लगा हुआ है विल टेक स्पेशल राइट्स हाथ से फाइंडिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अभी तक जब हम एचटीएमएल सर्च कर रहे थे तो किस नाम फिर दूसरा भी हमारे पास इस तरह से इसकी मेन हेडिंग क्या है, ये वाली चीजें ना हम ट्राई कर चुके हैं इसलिए मैं रन करके दिखा रही थी। यहाँ पे नई तरह की चीज आएंगी कोड आएंगे वो मैं आपको रन करके दिखाऊंगी। फाइंडिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अभी तक हम एचटीएमएल एलिमेंट्स को जो है पी इसी तरह से देखे थे, अब वही this example finds the element with id is equals to main। यहाँ पे हमने div की id रखी है main, then finds all p elements inside main। अच्छा div के अंदर क्या फर्क है कि div जब हम यूज करते हैं तो एक कंटेनर समझ हमारा क्रिएट हो जाता है और इसके अंदर हम मजीद डिफरेंट पीस रख के अपनी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं।
तो बीच में थोड़ा सा लंबा डिले आ गया था, उसके लिए आपने तब तक ये कोड देख लिया होगा। इसमें क्या हुआ, हमारे पास ये सारी चीजें ऐसी प्रिंट हो गई। फिर वेरिएबल एक्स हमने एक डिक्लेयर किया यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेन। इससे से जो है ना एक बोला कि आईडी असाइन किया, यहाँ से तुम्हें डाटा लेना है। फिर एक और वेरिएबल असाइन किया, वेरिएबल वाई, और एक्स इजिकल्स एक्स। अब इसमें हाँ आउटपुट में चेंजिंग भी आ रही है, तो देखते हैं। द डॉम इज वेरी यूजफुल, ये यहाँ पे मेंशन था, और यहाँ पे हमने इसकी मेन वाली आईडी कॉल की, तो ये लिखा आ गया। फिर ये लिखा है डॉक्यूमेंट आईडी, क्या फर्स्ट पैराग्राफ इनसाइड मेन इज। फिर क्या है, वेरिएबल y इज इक्वल टू x डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। हम टैग नेम के थ्रू भी बुला सकते, जैसे टैग नेम p है तो इसके तरीके हमने कॉल किया। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हमने लिखवाया फर्स्ट पैराग्राफ इनसाइड मेन इज, इस मेन के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ये वाला है, तो इसका जो टैग है वो है p। तो हम इसके आगे p लगा देंगे तो हमारे पास ये लिखा आ जाएगा। तो डॉम इज वेरी यूजफुल। चेंजिंग द HTML आउटपुट स्ट्रीम, तो उसके लिए क्या करना है, हमें डायनेमिक ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट मॉडल के फायदे हैं कि जावास्क्रिप्ट के साथ मिलकर क्या क्या काम करवा सकता है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द HTML एलिमेंट्स इन द पेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स, often with JavaScript you want to manipulate HTML elements, to do so you have to find the elements first. There are a couple of ways to do। हमें सबसे पहले अगर किसी HTML एलिमेंट को मैनिपुलेट करना है, सबसे ज़्यादा हमें HTML एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत कब पड़ती है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल फॉर्म पे काम कर रहे हैं, हमने एक टेक्स्ट की फील्ड बनाई हुई, वहाँ पे हमारे पास डाटा आया, तो हमें उस फील्ड को अंदर लेना है और उस फील्ड के डाटा को अपने पास जो है ना एक्सट्रैक्ट करके उस पर वर्किंग करनी है, या तो उसको स्टोर करवाना है या जो भी उसका पर्पज है वो करना है। दो तरीके हैं, या तो उस टेक्स्ट फील्ड को जब आपने क्रिएट किया, कोई आईडी बनाई, आईडी दी है, टेक्स्ट इज इनपुट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू और जो भी है उसको आईडी के जरिए आप ले सकते हैं। टैग नेम कोई दिया है इनपुट टेक्स्ट का, वो ले सकते हैं। क्लास बनाइए, क्लास आज बना के आपने फॉर्म क्रिएट किया तो उसके जरिए डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम एक एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं विथ आईडी, ये इतना कोड हम रन करके देख लेते हैं। इसमें क्या है, पी आई डी इक्वल्स टू इंट्रो, या कोई फॉर्म नहीं बना हुआ है, एक सिंपल आपको डाटा वहां पे ओबी जो ऊपर करा था उसके अंदर हमारे पास ये इस तरह से नहीं था। सही है, ये पहले कोड पी आई डी इक्वल्स टू इंट्रो, ये लेफ्ट 6 लिखा हुआ है, ये लेफ्ट 6 नहीं है, लेफ्ट 7 है। हमने हेलो वर्ड प्रिंट करा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इंट्रो, इंट्रो के पास जो भी एलिमेंट है वो गेट हो जाए एक्स के अंदर। एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर डाटा आप क्या राइट करवा रहे हैं, द टेक्स्ट फ्रॉम द इंट्रो पैराग्राफ, वहां से जो डाटा है जो कि एक्स में आपने स्टोर करवा लिया था, उसके ऊपर आपने लिखा है एक्स डॉट इनर HTML। इनर HTML किसको इंडिकेट कर रहा है, इस एक्स के अंदर, यानी इस इंट्रो के बाद जितना काम हुआ, तो इस इंट्रो के बाद सिर्फ हेलो वर्ड लिखा हुआ है, तो ये हेलो वर्ड लिखा हुआ है। इसको स्टेप बाय स्टेप हम रन करके देख लेते हैं। मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे रन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मेरा एक कोड खुला हुआ है विजुअल स्टूडियो पे।
वरना मुझे वो कोड बंद करना पड़ेगा। जब तक हम आगे पढ़ते हैं तब तक आपके पास कंपाइलर करना है। फाइंडिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स बाय टैग नेम। टैग का मतलब ये पीस है, आप उसको ढूंढ लें। div id इक्वल्स टू मेन है इसके अंदर। द डॉम इज वेरी यूजफुल और ये तीनों लिखे हुए। फिर स्क्रिप्ट का एक टैग बनाया और इसके अंदर ये हाँ हम इंतजार कर रहे थे अपनी वो वेबसाइट खुलने का। असल में मैं जहाँ पे आपकी ये क्लास का लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, इसकी वजह से मुझे बार बार रुकना पड़ रहा है। और आपको जो है ना इसके अंदर डिले नजर आ रहा होगा कि बार बार मेरी आवाज़ रुक रही है, तो इसी वजह से मुझे बीच में जो है ना रुकना पड़ रहा है। चलिए मैं आपसे एक दूसरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। इसमें ऑलरेडी इसी टाइप का कोड लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड एलिमेंट बाय आईडी डेमो। लेकिन उसके बाद इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। माई पैरा डॉट इनर एचटीएमएल हेलो वर्ल्ड, और ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। हम अपना वाला कोड भी लिख लेते हैं। ये देखें, थोड़ा सा मैं इसके अंदर स्पेस क्रिएट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए हर चीज। डिव आईडी है आपकी मेन, और उसके अंदर हमने ये दो तीन जो है लाइनें लिखी हुई, फिर आपका ये जो डिव है ये क्लोज हो गया। देन यू हैव स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल के अंदर हमने बोला कि जो गेट एलिमेंट बाय आईडी करो मेन, मेन के जो भी हैं एलिमेंट्स वो इसके अंदर आ जाए। फिर हमने बोला वेरिएबल वाई, वेरिएबल वाई के अंदर क्या स्टोर करवाओ, एक्स डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम पी। एक हमने आईडी के थ्रू डाटा ले लिया और एक डाटा हमने ले लिया टैग नेम। तो आईडी के थ्रू जो डाटा लिया उसके अंदर तो ये तीनों लाइंस आ गई, और टैग नेम पी के थ्रू जो हमने डाटा लिया वो इस पी के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, ये हमारे पास आ गया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब हमें आउटपुट के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने हमने लिखा है यहाँ पे, और ये लाइन हमने फिक्स कर दी, फर्स्ट पैराग्राफ इनसाइड मेन इज। फिर हमने क्या किया इसके, अब यहाँ जो टैग नेम के थ्रू आया, एक्स के अंदर पहले ये सब आ चुका था जो कि मेन में था, तो हमने लिखा वाई जीरो, यानी दो तीन लाइनें ना टैग नेम पी के अंदर, दो तीन लाइनें, वन टू थ्री। तो वाई ऑफ जीरो मतलब पहली वाली लाइन में जो लिखा है वो लिखा हुआ है वाई ऑफ जीरो डॉट इनर एचटीएमएल। तो पहली लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, द डॉम इज वेरी यूजफुल। तो देखें पहले ये लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ इनसाइड मेन इज, और उसके बाद लिखा हुआ है द डॉम इज वेरी यूजफुल। उससे पहले हमने क्या किया था, हमने मेन को कॉल किया था, इस वाली को, टैग बाय आईडी। तो आईडी के अंदर तो तीन लाइनें, तो वो तीनों की तीनों लाइनें प्रिंट होकर आ गई थी। सबसे पहले ये एड्रेस प्रिंट होकर आ गया था। उसके बाद दोबारा देखिए हमने क्या किया, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमने पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया एक्स, उस वेरिएबल के अंदर हमने
मेन को जो है कॉल किया, मेन के जो तीनों लाइन थी वो इसके अंदर स्टोर हो गई। फिर हमने बोला बाय टैग नेम पी, पी का जो डाटा है वो इसके अंदर आ जाए वन बाय वन। उसके बाद हमने उसकी पहली वाली लाइन को प्रिंट करवा दिया, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। असल चीज जो है ना वो इस लैब में वो तो हमको सीखनी है फॉर्म वैलिडेशन। पहले फॉर्म क्रिएट करना, उसके अंदर डाटा एंटर करना और फॉर्म वैलिडेट, चेंजिंग द एचटीएमएल आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट के ऊपर कोई डाटा आ रहा है और उसको हमें चेंज करना है डायनेमिकली, तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट डायनेमिक डॉक्यूमेंट डॉट राइट कैन बी यूज टू राइट डायरेक्टली टू द एचटीएमएल आउटपुट सिस्टम। अब हमारे पास ये वाला हमने कर लिया। आउटपुट स्ट्रीम के अंदर क्या चेंजिंग देख सकते हैं हम, वो दिखाते हैं आपको। JavaScript can create dynamic HTML content in JavaScript. Document.write can be used to write directly to the, ऐसा भी हो सकता है हमने इनपुट में कुछ भी स्टोर नहीं करा, हमें डायरेक्टली बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हुए डायरेक्ट आउटपुट है। तो हमने क्या किया, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर सिर्फ डेट के फंक्शन को कॉल किया, इसका कुछ भी यहाँ पे डेट टाइम कुछ भी हमने खुद से मेंशन नहीं किया। मतलब जिस टाइम पे भी आप इस कोड को रन करेंगे उस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारा डाटा आपके पास आ जाएगा। इसको हम रन करके देख लेते हैं। पेन बंद करो। ये देखिए मैंने डेट लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इस वक्त की डेट यहाँ पे शो हो रही है। वापस अपने मैनुअल की तरफ हैं हम। आई थिंक आप लोगों को भी मैनुअल शो हो रहा होगा, एक दफा फिर से आई विल चेक द शेयरिंग ऑफ द मैनुअल। ओके फाइन। There is another heading changing HTML content. अब आप HTML के कंटेंट को बाय यूजिंग इनर HTML कैसे इसको चेंज कर सकते हैं? आपके पास एक आईडी है PID इक्वल्स टू P1, उसके अंदर आपने मेंशन किया हुआ है हेलो वर्ल्ड। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आपने क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के जरिए से डाटा उठा के लाओ और उस आईडी का नाम क्या है P1 डॉट इनर HTML, और उसको चेंज कर दो। आप सिर्फ इतना लिखते हैं तो आपके पास इसके अंदर आ जाती है सारी वैल्यू, जैसे कि हम यहाँ पे थे, हम ये लिख रहे थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेन और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे। लेकिन इस दफा हमने क्या किया, इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवाया, बल्कि पहले हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी P1 डॉट इनर HTML, उसके बाद हमने इक्वल्स डाल के लिखा है न्यू टेक्स्ट। इससे आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। उससे होगा क्या कि इस P1 आईडी के अंदर जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने वाला था वो प्रिंट नहीं होगा, वो पहले एक दफा प्रिंट हो गया अगर, लेकिन वो अब प्रिंट नहीं होगा और उसकी जगह पे न्यू टेक्स्ट लिखा है। फिर आपने क्या किया था, अब एक पी लिख के मैं ये वाली स्टेटमेंट लिख दी था, अब पैराग्राफ वाज चेंज बाय स्क्रिप्ट के जैसे ही प्रोग्राम रन हो रहा है, हमको फंक्शन की कुछ कॉल करने की जरूरत तो है नहीं, पैराग्राफ आईडी कॉल कर रहे हैं और ये लिखा हुआ है। अच्छा इसको रन करके देखते हैं। अगर ये इस तरह से मेंशन करते हैं कि ये जो है ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी P1, पहले सिर्फ इतना प्रिंट करवाते तो एक दफा हेलो वर्ल्ड भी लिखा हुआ है। तो हम इसकी भी कोशिश करते हैं कि एक दफा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाए और एक दफा ये लिखा हुआ था। ये देखिए एक दफा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, क्योंकि आपने एक दफा तो ये मेंशन किया है। आपने सेकंड टाइम में बोला था कि इनर एचटीएमएल जो है वो आपका चेंज हो जाए न्यू टेक्स्ट में, लेकिन ये चेंज तो नहीं हुआ। करके देख,
तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। असल में फॉर्म वैलिडेशन की तरफ जाते हैं। ये किस वजह से रन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा स्टाइल ये कर लेते हैं। P1 हेलो वर्ल्ड है, स्क्रिप्ट आपके पास ये आ गया था। पैराग्राफ अबव वाज चेंज बाय अ स्क्रिप्ट, लेकिन ये चेंज हुआ नहीं। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं, एक काम बस एक ट्राई करके देख लेती हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ूंगी। केस को मैं किसी वेरिएबल एक्स में सेव करा दूं और फिर हम उस वेरिएबल को प्रिंट करवाएं। अदरवाइज तो हमको फिर इसको फंक्शन बना के करना पड़ेगा। वो भी रहेगी। नहीं, हम इसको कैसे चेंज करके देंगे। ये तो चल रहा है, लेकिन ये इसका टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा। डेटा कनेक्शन इसमें स्टॉप हो गया तो अगेन कमिंग टूवर्ड्स द मैनुअल। चले हम आगे बढ़ते हैं। ये कोई इतना हमारी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, अभी बाद में देखते हैं इसको। तो एग्जाम्पल चेंजेस द कंटेंट ऑफ एन एच वन एन, इस कोड को भी रन करके देख सकते हैं कि किस तरह से रन होगा। इसमें ये कह रहे हैं कि ये वाली एग्जाम्पल जो है आपके H1 कोड को एलिमेंट को चेंज करेगी। H1 ID इस वक्त क्या हेडर है और उसके अंदर लिखा हुआ है ओल्ड हेडर के ये प्रिंट होना चाहिए। फिर स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के अंदर आपके पास नए समझ लो एक्सप्रेस का नाम है, वेरिएबल क्रिएट हुआ हुआ है एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडर। एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इज इक्वल्स टू हेडर। अच्छा, इस कोड को रन करके देख लेते हैं। ओल्ड हेडर वाज चेंज टू न्यू हेडर। यहाँ पे ये चेंज हो गया। H1 की इसकी आईडी के अंदर ओल्ड हेडर लिखा हुआ आ रहा था। इन्होंने किस तरह से करा है इस चीज को, वही जिस तरह से मैंने एक वेरिएबल में सेव करवाया था। और इंक्रीमेंट डॉट इनवेस्टमेंट इसके अंदर आप ये चेंजिंग करके देख लो। फिलहाल मैं रन तो नहीं करवा रही, लेकिन एंट्री लिख देती हूँ। वेरिएबल ELEMENT वेरिएबल एलिमेंट इज इक्वल्स टू ये लिखा। उसके बाद ये सब एक ही लाइन में लिखा हुआ। ये दोनों कोड आपने रन करके देखने आप मुझे बताने इसका आउटपुट। फिर उसके बाद क्या किया कि वो जो एलिमेंट के वेरिएबल के अंदर हेडर की आईडी आई थी ना, उसको लेते हुए इनर एचटीएमएल लगा के नया टेक्स्ट लिख देना है, जिस तरह भी आप चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे भी एलिमेंट हमने लिखा एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल ई स्मॉल है, एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल
इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है इसकी जगह पे, ओल्ड टेक्स्ट प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, अब ये इंशाल्लाह आपके पास रन हो जाएगा। जब मैं आपसे शेयर करूंगी मैंने तो आपके पास ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो हमने सिर्फ सीखा कि टेक्स्ट कैसे चेंज करना है, लेकिन ये एट्रीब्यूट्स भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से वही चीज कि आप गेट एलिमेंट बाय आईडी और डॉट एट्रीब्यूट से वो एलिमेंट लेंगे और इक्वल्स टू उसको न्यू वैल्यू कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज थी जो कि हमने ऐड कराई हुई है, मैं इमेज ऐड नहीं करके दिखा रही, मैं सिर्फ आपको एक कोर्स समझा रही हूँ। इमेज आईडी इक्वल्स टू इमेज, इसका तरीका क्या हुआ कि आपने जो भी इमेज यहाँ पे लेनी है उस इमेज को आप अपने उस फोल्डर के अंदर, जैसे मेरे पास ये फोल्डर बना हुआ है जो मैंने विजुअल स्टूडियो पे कोड खोला हुआ है, उसका एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर जो है एचटीएमएल फाइल रखी है, यहीं पे आप अपनी कोई पिक्चर सेव करवा देंगे। ठीक है, अब वो पिक्चर वेबसाइट पे कितने साइज की शो हो, आपने उसकी यहाँ पे विड्थ एंड हाइट बना ली, तो जैसे कि ये बन गई पिक्चर। ठीक है, फिर स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इमेज डॉट सोर्स। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको आईडी के सिर्फ आईडी के इमेज ये डॉट सोर्स ये आपने लिया इक्वल्स टू लैंडस्केप डॉट, ये दोनों जो आपके पास पिक्चर्स हैं ये आपको उसी फोल्डर में रखनी है जिस फोल्डर में आप विजुअल स्टूडियो कोड की लैब बना रहे हैं। ठीक है, The original image was smiley.zip but the script changed it to landscape. तो पहले तो ओरिजिनल इमेज हमारे पास स्माइली था, लेकिन अब ओरिजिनल इमेज आपके पास चेंज होकर किस में चला गया, इसमें चला गया। यहाँ पे भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि पर डायरेक्टली कर लें, वरना वही वेरिएबल एक्स इजिकल्स टू करके सब चीजें पहले एक्स पे स्टोर होंगी और फिर हो जाएगा एक्स इजिकल्स टू लैंडस्केप डॉट जेपेग। मैं इसको यहाँ पे रन करके देखती हूँ, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि मैंने कोई पिक्चर स्टोर नहीं कराई हुई, और अगर इनके डेटाबेस के अंदर इस नाम से पिक्चर्स होंगी तो ये स्टोर हो जाएगा। हाँ, देखिए इनके पास इस नाम से पिक्चर थी, द ओरिजिनल इमेज वाज स्माइली बट द स्क्रिप्ट चेंज इट टू लैंडस्केप। अगर मैं ये वाली कोडिंग यहाँ से हटा दूँ, इसको अगर हम कमेंट कर दें, ये कमेंट हुआ है, नहीं इसके अंदर ऑनलाइन टूल पे कमेंट कर रहा है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास देखिए स्माइली वाली भी इधर शो हो गई। इसका फायदा ये भी हो सकता है कि अगर हमें एक जगह स्माइली पिक्चर शो करनी है, एक जगह ये वाली शो करनी है, तो हमने एक दफा ये वाली पूरी इसकी वेट और हाइट और जो भी एट्रीब्यूट सेट करने थे ना वो हमने एक दफा सेट कर दिए। उसके बाद हम बस उस पिक्चर चेंज करते जाएंगे, या आपको इस तरह की रील चला रहे हैं या आपकी वीडियो शफल होती हुई नजर आ रही है वेबसाइट के ऊपर, तो आप उसके बाद एक के बाद एक इस तरह से शफल कराते रहेंगे, लेकिन इसके एट्रीब्यूट सेम रहेंगे कि कौन सी पोजीशन के ऊपर शो हो और कौन से जगह पे शो हो, उसकी वेट और हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसकी सेम रहेंगी। ये इस चीज के लिए फायदेमंद है। मैं इस कोड को जो मैंने कट किया था वो वापस यहाँ रख दूँ, अगर ये आ गया, अब हम रन करेंगे तो देखो हमारे पास ये है। अब ये बार बार चेंज हो सकता है, अब इसके ऊपर कुछ फॉर लूप लगा दें, कुछ भी इस तरह की टेक्निक देख के इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें कि हमारे पास 3 इमेजेस हैं और हर इमेज का साइज हमारे पास ये सेम ही रहेगा, और जो भी प्रॉपर्टीज और ऐड करनी, कोई बॉर्डर वगैरह कुछ भी, वो आप इसके अंदर सब चीज़ें इमेज आईडी के अंदर डाल दें। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से एक दफा इस इमेज को उठा लें और फिर बार बार चेंज, एक दफा लैंडस्केप डॉट जेपीजी हो जाए, एक दफा दूसरी एक दफा दूसरी, इसमें फॉर लूप लग के ये चेंजिंग आ सकती है। तो एक आपका एक हिंट है कि किस तरीके से आपकी अक्सर आप वेबसाइट्स पे देखते हैं इमेज चेंज होते हुए नजर आ रहे होते हैं, तो इसके पीछे एक टेक्निक ये है। Then we have DOM CSS। जब आपको स्टाइलिंग चेंज करनी है, यानी कि फॉन्ट साइज चेंज करना है या कलर चेंज करना है, तो वो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। हमने क्या किया, 2 आईडी बनाई, एक P1 एक P2, और P2 के अंदर हमने बोला ये स्टाइल और कलर चेंज कर दो। P2 का अलग अलग टेक्स्ट लिख लेते हैं, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम हेलो वर्ल्ड की जगह अप्रैल, अप्रैल का मंथ चल रहा है ना, सो वी हैव written here अप्रैल।
वी आर राइट अप्रैल। अब आप दो चीजों पे चीजें अप्लाई कर सकते हैं। आप एक P1 पे भी मैंने अप्लाई कर दिया और यहाँ पे P2 के ऊपर फॉन्ट की फैमिली चेंज हो गई है और फॉन्ट का साइज चेंज हो गया है। देखते हैं आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है। तो हमने एक आईडी क्रिएट की P1, उसका नाम अप्रैल रखा हुआ है। दूसरी आईडी क्रिएट की है हेलो वर्ल्ड। दोनों पहले ब्लैक कलर के थे। अगर मैं यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग चेंज ना करूँ, यानी कि ये वाली जो आईडी है P1 वाली, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कट कर दूँ, Ctrl+X कर दिया मैंने और अब इसको रन किया तो ये पहले ब्लैक लिखा हुआ था, तो अभी भी ब्लैक लिखा हुआ। इसके अंदर फॉन्ट साइज वगैरह में किसी में भी कोई चेंजिंग नहीं आई। और मैं इसको वापस रखूँ, P2 का क्यों चेंज हो, P2 तो हाँ लार्ज हुआ है। अब देखें ये ब्लू हो गया। अगर मैं इस वाले का भी कलर और साइज कलर भी चेंज करना चाहूँ तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। पहले हमने P1 आईडी का कलर चेंज किया था, अब हम P2 आईडी का कलर चेंज कर रहे हैं और कलर चेंज करके रेड। जब भी आप स्टाइल चेंज करेंगे तो पहले इसके बाद आएगा डॉट स्टाइल, और डॉट स्टाइल के बाद आप स्टाइल की जो भी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, चाहे कलर चेंज कर रहे हैं, चाहे फैमिली चेंज कर रहे हैं, राइटिंग साइज चेंज कर रहे हैं, सो वो डॉट के बाद मेंशन कर देंगे। तो ये देखें अभी इसका कलर रेड है। ओके, वापस कहाँ, मेन्यू के पास। where is where is manual era? another property is click me। जब आप क्लिक कर दें बटन के ऊपर, उसके बाद उसमें चेंजिंग है। यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या है कि H1 हेडिंग डली हुई, इसकी आईडी मेरे पास ये है, बटन टाइप ये है। ऑन क्लिक पे क्या हो कि जो है इसका कलर वगैरह सब चीजें चेंज हो जाए। एक जगह पे क्लिक मी लिखा हुआ आ रहा होगा और उसके ऊपर ये चीजें चेंज हो जाए बटन। असाइन इवेंट्स यूजिंग द HTML लॉग। हम बात करते हैं ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर। स्क्रिप्ट है हमारे पास, ऑन क्लिक करें तो फंक्शन कॉल करो। उस फंक्शन के अंदर अभी फिलहाल हमने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं डाली, बल्कि एक डिस्प्ले डेट का फंक्शन कॉल कर लिया और वो आसानी से हो जाएगा। ऊपर नीचे वही डॉक टाइप HTML सारी चीजें आएंगी। बाकी आप ये रन करके देख लीजिएगा डिस्प्ले डेट का फंक्शन, इस वजह से कि आपका जो एक लेफ्ट टास्क के लास्ट पे उसके अंदर भी आपको डेट जो है प्रिंट करवानी है। अब आते हैं मसल चीज की तरफ, जिसने बहुत ज्यादा मेरा भी टाइम लिया टास्क वगैरह बनाने में और आपका भी ये टाइम लेगा, लेकिन अगर आप इसको एक दफा समझ लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान और बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आगे ये जो एक दो लैब्स और है, अभी तो इसके अंदर हम सिर्फ क्या सीखना है कि फॉर्म में डाटा कैसे एंटर करना है और जो है फॉर्म के डाटा को वैलिडेट कैसे करना है। क्योंकि आपने फॉर्म तो क्रिएट कर लिया, उसमें आपने नाम की फील्ड बना ली, सिग्नेचर सॉरी नाम, ईमेल और कांटेक्ट नंबर, ये सब चीजें आपने चार पांच फील्ड जो भी आपको नेसेसरी रिक्वायर्ड थी आपने होंगे। लेकिन अक्सर स्टूडेंट ऐसे मजाक मजाक में उल्टा सीधा फॉर्म फिल कर देते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट ने फिल कर दिया, अपना नाम लिख दिया, ईमेल की जगह उसने XYZ लिख के छोड़ दिया, और एड्रेस उसने फिल नहीं करा, कांटेक्ट नंबर उसने 1 2 3 के बजाय ABCD कर दिए, करेक्टर्स में लिख दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास बहुत सारे रैंडम ऐसे गलत फॉर्म आ जाएंगे, आप उसको तब तक स्क्रूटनी करेंगे। तो उससे ज्यादा और ये भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट वाकई में उसने गलती से गलत कर दिया, सही मेल की फील्ड में उसने गलती से कांटेक्ट नंबर डाल दिया। अब वो कांटेक्ट नंबर जब वो फाइल एक्सेल में डेटाबेस में कन्वर्ट होगी तो उसके अंदर एड्रेस नहीं होगा ड्यू टू डाटा टाइप। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम जब फील्ड्स बनाएं तो हमें उसी का ख्याल रखना है कि आपकी फील्ड्स जो हैं वो प्रॉपरली जो है डाटा को वैलिडेट कर रही हो, एंड आफ्टर वैलिडेशन यू कैन सबमिट योर डाटा। कौन कौन सी चीजें हमें वैलिडेट करने की जरूरत पड़ती है? हैज द यूजर लेफ्ट रिक्वायर्ड फील्ड्स एम्प्टी। सबसे पहले तो वैलिडेशन यही होती है कि कहीं कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं है।
एज इज एंटर्ड अ वैलिड ईमेल एड्रेस, वैलिड डेट, न्यूमेरिक फील्ड उसने सही डेटा फिल किया है कि नहीं। हम्म यहाँ जो कोड है इसके अंदर, या जो कोड मैंने कंपाइल किया उसके अंदर सिर्फ दो फील्ड्स के ऊपर काम किया, एक नेम की फील्ड और एक ईमेल फील्ड। लेकिन जब आप इस को प्रोग्राम की दफ़ा रन कर लेंगे आपका सही आउटपुट आ जाए। उसके बाद आपने इसमें कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने हैं, आप इसके अंदर कोई बैंक का अकाउंट नंबर मांग सकते हैं, एनआईसी नंबर मांग सकते हैं, और उसको मेंशन कर दें विदाउट डैश अगर कैरेक्टर्स ले रहे हैं। और अगर आप पूरी कोडिंग कर रहे हैं तो फिर आप जिस तरह भी हम ईमेल के लिए कोड बनाएंगे कि ईमेल को कैसे वेरीफाई करना है, तो फिर आप अकाउंट नंबर को भी या एनआईसी नंबर को भी उस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। अकाउंट नंबर में तो डैश किया था, एनआईसी नंबर में डैश आते हैं दो। तो अगर आप पैटर्न मैचिंग करना चाहें तो आपको उसकी कोडिंग करनी होगी, और अगर आप डायरेक्टली एनआईसी को वहाँ पे नीचे मेंशन कर देंगे विदाउट नंबर्स, सॉरी विदाउट डैश, इसको फिल करो तो करते हैं। फंक्शन वैलिडेट फॉर्म का है। इसके अंदर सिंपली क्या है, एक वेरिएबल एक्स है जो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, आपके फॉर्म जो आपने क्रिएट किया है पहले वो फॉर्म क्रिएट करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें कौन कौन सी फील्ड है, और फिर देखते हुए आप ये वैलिडेट फॉर्म का फंक्शन बनाएंगे। फादर नेम था, फादर नेम आ गया। डॉट वैल्यू इफ, फिर एक्स इजिकल्स टू नल, एक्स इजिकल्स टू दिस, या तो नल लिखा हुआ आ रहा है या फिर क्या नाम है कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा, तो आप एक अलर्ट जारी कर दें, अलर्ट विंडो ओपन कर दें, इसमें लिख दें फर्स्ट नेम मस्ट बी फिल्ड आउट और रिटर्न false, otherwise a false name. Function above could be called when a form is submitted. अब फंक्शन कब कॉल होगा, जब आपका फॉर्म सबमिट होगा। फॉर्म सबमिट करने का हमारे पास क्या तरीका है, फॉर्म की हमने एक फील्ड बनाई, फॉर्म नेम इज इक्वल्स टू माय फॉर्म। अगर आप ये दो चीजें नहीं लिखें तो ये यहाँ से स्किप करेंगे, तो आप ये यहाँ से भी स्किप कर देंगे, इससे कोई आपका असर नहीं पड़ेगा। एक्शन क्या है, डेमो फॉर्म डॉट ए एस पी ऑन सबमिट इज इक्वल्स टू रिटर्न में। एक फॉर्म है, उसका एक्शन क्या है कि एक फॉर्म की फाइल क्रिएट हो जाए एएसपी फाइल, और ऑन सबमिट पे क्या हो कि वो चला जाए रिटर्न वैलिडेट फॉर्म के पास, यानी इस वाले फंक्शन के बाद। अगर इस फंक्शन का नाम आप कुछ और रखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ और रख दें। मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, ये पोस्ट मेथड पे स्कूल जा रहे हैं। एक होता है गेट मेथड, एक होता है पोस्ट मेथड, इन दोनों का डिफरेंस मालूम करके रखें। गेट और पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मैं पूछूंगी। अच्छा, ये फॉर्म क्रिएट हो रहे हैं। ये ना फर्स्ट नेम की फील्ड बनाई, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। फिर आपके पास नेक्स्ट नेम की एक फील्ड है, और उस नेम की फील्ड का आपने जो है आईडी या नेम जो है वो रखा है एफ नेम, और उसमें इनपुट टाइप लिखी है आपके पास सबमिट, यानी दोनों को एक बटन की जरूरत है सबमिट करने के लिए। और ये आपके पास है क्या फॉर्म, ये था नेम के लिए। ईमेल वैलिडेशन में जाने से पहले हम इसको रन कर लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मैं खाली इस फंक्शन को उठाऊं, वहां पे लिखूं और रन हो जाएगा। फंक्शन हमेशा किसके अंदर आएंगे, आपके जिसके ऊपर आपका काम हो रहा है स्क्रिप्ट के अंदर। और सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा पेज के ऊपर, पहले हम एक नोटपैड की फाइल खोलते हैं, वहां पे कोड में आपको कंपाइल करना सिखाती हूँ कि अगर आपके पास अलग अलग चंक्स में कोड हो तो कैसे काम करेंगे आप। सबसे पहले आपने डॉक टाइप HTML ये लिखना होता है। उसके बाद आपको मेंशन करना होता है HTML का टैग। ठीक है, ये तो मस्त है। देन यू हैव हेड टैग, उस हेड टैग के अंदर आप टाइटल भी लिख सकते हैं। उस हेड टैग के अंदर आप कोई जावा स्क्रिप्ट, हाँ आपने तो यहाँ स्क्रिप्ट की कोडिंग करनी है तो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग बना लिया, और यहाँ से फंक्शन कॉपी करके लाते हैं और ये फंक्शन यहाँ पेस्ट कर देते हैं। फिर आपने किया स्क्रिप्ट क्लोज, देन हेड क्लोज किया, उसके बाद है बॉडी। बॉडी के अंदर आप जो है HTML की कोडिंग करते थे, तो इसलिए आप बॉडी के अंदर फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म क्रिएट करने की कोडिंग कहाँ पर है, यहाँ पे ये रही। ठीक है, अब आप बॉडी का टैग क्लोज करेंगे।
और क्या क्लोज करेंगे /HTML। ठीक है, ये कोड हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम इसको मैच करेंगे, जो मैंने विजुअल स्टूडियो पे कोड बना के रखा हुआ उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। वो कोड पूरा कंप्लीट शक्ल में है और ये कोड हमारे पास दो चंक्स में है। शेयरिंग। ये देखें, हेड बनाया, हेड के अंदर स्क्रिप्ट आया, स्क्रिप्ट के अंदर क्या फंक्शन। और ये सारी चीजें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद होगा कि हेड का टेक कहाँ बनाना है, स्क्रिप्ट कहाँ बनाना है, क्या करना है, फिर आप मिनटों में काम करने के काबिल हो जाएंगे। तो हमने अभी यही देखा था कि फंक्शन यहाँ बनाना है, हमने फंक्शन यहाँ बना दिया। चेंजिंग क्या है, पहले आप इसको को देख लें। वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम डॉट वैल्यू। इसी तरह सेम ईमेल का बनाया, दोनों चीजें बना दी। वहां पे भी क्या हमने ऐसे ही बनाया है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ था डॉट फॉर्म, माय फॉर्म्स, ये हमने हटा दिया यहाँ पे। या हमने हम डायरेक्टली जो जब फील्ड क्रिएट किए, कहाँ क्रिएट किए, इसकी बॉडी के अंदर हमने फील्ड क्रिएट किए नेम की, तो वही हमने यहाँ पे इसको कॉल किया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम डॉट वैल्यू, देन ईमेल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ईमेल डॉट वैल्यू। इफ नेम इज इक्वल्स टू, अब हम चेक कर रहे हैं, अगर नेम की फील्ड खाली है तो एक अलर्ट विंडो ओपन करो, नेम मस्ट बी फिल आउट रिटर्न फॉल्स। इफ ईमेल, ईमेल को चेक कर लिया इस तरह से। अब जो ये लिखा हुआ है ना ईमेल, और ये जो लिखा हुआ है नेम, ये कहाँ से आए, ये दोनों यहाँ से आए, नेम और ईमेल से। ये दोनों हमने वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर ही क्रिएट किए। तो यहाँ पे जो नेम और ईमेल लिखा हुआ है वो कहाँ से लिखा हुआ है कि जब हम फॉर्म क्रिएट कर रहे थे बॉडी के अंदर, इनपुट की फील्ड क्रिएट कर रहे थे, तो हमने इनका नाम, इनकी जो आईडी थी उसका नाम रखा था नेम, और इस आईडी का नाम रखा था हमने ईमेल। BR हमने लाइन ब्रेक करने के लिए दिया था। एक दफा लाइन ब्रेक हुई, इसमें अगली लाइन में गई, दूसरी दफा लाइन ब्रेक हुई तो एक और अगली लाइन में चले गए। तो ये हमने बॉडी में जो फॉर्म क्रिएट किया तो बहुत ही सिंपल तरीके से किया कि लिखा के फॉर्म, यहाँ पे मैनुअल में जो कोड है यहाँ फॉर्म के बाद माय फॉर्म भी लिखा हुआ है, नेम फॉर्म नेम इज इक्वल टू माय फॉर्म, वो लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह से कुछ चेंजिंग नहीं आई थी, इसलिए मैंने वो हटा दिया। ऑन सबमिट पे कहाँ जाए, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म पे जाए, ये वाले फंक्शन पे वैलिडेट फॉर्म इधर चला गया। ठीक है, फिर नेम इनपुट की फिर आ गई, फिर हमने एक बटन, एक टाइप क्रिएट की सबमिट की, यानी सबमिट का एक बटन क्रिएट किया, उस वैल्यू इक्वल टू उसको सबमिट ही दे दिया। पहले हम इतना रन कर लेते हैं ताकि आपके सामने एक आउटपुट आ जाए। ये देखें, ये फील आ गई। जो दो दफा BR लगाया था, फर्स्ट BR ने ईमेल को नेक्स्ट में भेजा था, फिर सेकंड BR ने यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस क्रिएट कर दिया। नेम मैंने लिखा उजमा, और ईमेल की फील्ड मैंने खाली छोड़ दी और सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे ये आपके पास एक विंडो आ गई। ये विंडो कैसा है, आपने अलर्ट विंडो के नाम से कोड में आ गया। आपने लिखा था अगर ईमेल खाली है तो अलर्ट, अलर्ट लिखने से मतलब ये है कि एक विंडो ओपन हो, उसमें लिखा हुआ है जो भी मैसेज रिटर्न फॉल्स। अब मैंने क्या करा, अब ईमेल एंटर करते हैं, लेकिन मैं ईमेल का, अच्छा जब तक आप ओके नहीं करेंगे अलर्ट विंडो जाएगी नहीं। ओके कर दिया। अब ईमेल के अंदर मैंने गलती से मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, वो सबमिट नहीं हो रहा, बोला नॉट वैलिड ईमेल एड्रेस। देन मैंने क्या किया, अब ईमेल डाली, लेकिन ईमेल जानबूझ के या बगैर जानबूझे मैंने गलत एंटर कर दी, usma@gmail.com.pk। इनके दो दफा डॉट डाल दिया, जबकि इसका ईमेल का स्टैंडर्ड क्या है कि @ से पहले एक दफा कोई नाम आता है, फिर डॉट लिख के फिर कोई नाम आता है, या फिर वो डॉट ना भी आए उसके बाद @ फिर जीमेल, या जो भी आपका डोमेन है, जीमेल है याहू, फिर डॉट आएगा कॉम और बस फुल स्टॉप। लेकिन यहाँ पे के बाद दो दफा डॉट डाल दिया। हाँ, ये कैसे सबमिट हो गई, ये सबमिट नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा अभी रुक जाए, दूसरा एंटर करते हैं। ये दिखाना चाहती हूँ जिस तरह हमने पहले एक टास्क किया था ना, सब चीजें आपके ब्राउजर में सेव होती है, तो देखिए अभी भी सेव हो रही है। अब मैंने एंटर किया साद, और साद रहमान @gmail.com।
.com ये कर ली, इसका पैटर्न सही था। ये सारा डाटा यहाँ पे स्टोर होता है। अब मैं सिर्फ साथ लिख रही हूँ, यहाँ पे पूरी ईमेल नहीं डाल रही, और यहाँ मैंने लिख दिया अक्सा, ये अभी भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे वैलिड नहीं हुआ। ठीक है, वापस जल्दी से कोड की तरफ आते हैं और मैं बताती हूँ कोड में क्या चेंजिंग करनी है, क्या चेंजिंग मैंने की है वो बताती हूँ मैं आपको, ताकि जब आप मैनुअल को बनाए और उसके अंदर कोई एरर आए, पहले आप मैनुअल वाला कोड ही एक साथ कंपाइल करके रन कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर हमने बस ये किया है। ठीक है, अब अगर आपको फील्ड ऐड कर लेते हैं कॉन्टेक्ट नंबर की, तो आप नंबर की फील्ड को इसी तरह से चेक करवाएं, इफ नंबर इज इक्वल्स टू एम्प्टी, इफ नंबर दिस। अब ये क्या है, वेरिएबल पैटर्न इज इक्वल्स टू दिस। जब भी हमें ये चेक करवाना है कि इसके अंदर ईमेल सही इंटर हुई हुई है या नहीं, एक तो होता है इंटर है या नहीं, वो हम इससे चेक कर रहे हैं। मैंने इसकी जगह कुछ भी लिख दिया, डॉट डाल दूँ, उजमा लिख दूँ, 1 2 3 लिख दूँ, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये मान लेगा कि ईमेल है। लेकिन अब मुझे ये वैलिडेट करना है कि फॉर्म में जो डाटा डाला है उसमें ईमेल ही डाली है, कुछ और डालिए। तो उसकी वैलिडेशन के लिए क्या है हमारे पास, टू टाइप्स है हमारे पास ईमेल को वैलिडेट करने की। कौन कौन सी टू टाइप्स, एक होता है इंडेक्स ऑफ मेथड, एक होता है रिजिक्स वैलिडेशन मेथड। अब जो मेथड यूज होता है वो है रिजिक्स वैलिडेशन, और पहले हम जो यूज करते थे इंडेक्स ऑफ मेथड है, इसके अंदर थोड़े एरर्स आ जाते हैं। इंडेक्स ऑफ मेथड जो है वो सिर्फ पोजीशन को चेक करता है, गिव मिस इनवैलिड फॉर्मेट, जैसे कि 3 लफ्ज बाद या 4 लफ्ज बाद डॉट आना चाहिए। अगर किसी का बहुत बड़ा नाम है, लाइक सादिकुर रहमान बहुत लंबा नाम है, अब्दुल रहमान बहुत लंबा नाम है, तो और किसी ने वही आईडी बनाई है, तो फिर अब्दुल रहमान के बाद डॉट आएगा, तो पोजीशन तो डॉट की चेंज हो गई, स्टैटिक की पोजीशन भी सवाल से चेंज हो जाएगी। तो इस बेस पे वो यस और नो कर देता है जीमेल। तो इसलिए इंडेक्स ऑफ मेथड के बजाय हमारे पास एक दूसरा मेथड है, उसका नाम है रिजिक्स वैलिडेशन मेथड। रिजिक्स वैलिडेशन मेथड के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये पैटर्न चेकर है। ये पैटर्न चेक करता है कि ये आना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, फिर इतने लफ्जों के बाद जो है तकरीबन, या कुछ लफ्जों के बाद, इतने लिमिट नहीं करता कि 4 लफ्ज के बाद आए, क्या है कि पैटर्न जो है डॉट आना चाहिए, फिर एट द रेट आना चाहिए, फिर डॉट आना चाहिए, इस तरह से। रिजिक्स अ पैटर्न checker, it does not understand email like a human, does this text match the required। अब ये पैटर्न बस आपको याद रखना है। ठीक है, नेट पे तो लिखेंगे फौरन से मिल जाएगा, लेकिन कभी आप ऐसे काम कर रहे हैं विदाउट इंटरनेट, तो ये क्या है और इसको स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से अलग करेंगे वो देखें। सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सो ईमेल मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, कि ऐसा ना हो कि वो जो आपकी इनपुट फील्ड है पहले आपने उसमें 2 स्पेस दे दिए, उसके बाद आपने फील्ड इंटर की, तो भी वो डाटा को इंसर्ट नहीं करेगा। फिर वो जो आगे के 4 5 लफ्ज है उस तरह से कवर हो रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट, ये स्लैश, ये एस, ये सब चीजें क्या रिप्रेजेंट करेंगे एट द रेट प्लस तक, बिफोर एट, ये सब बता रहा है कि एट द रेट से पहले ये सब चीजें आ सकती, मतलब चीजें आ सकती हैं, नंबर भी आ सकता है, और मस्ट हैव करेक्टर्स, नो स्पेसेस का ये मतलब है। नो एट अलाउड है, पहले एट से पहले नंबर अलाउ है, करेक्टर्स अलाउ है, लेकिन स्पेसेस अलाउ नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में आ गया उजमा 1 2 3, ठीक है, नंबर भी आ गया, करेक्टर्स भी आ गए, मगर ना तो कोई स्पेस है ना एट द रेट, उसके बाद एट द रेट आ जाएगा। मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 1, और एक ही दफा आना चाहिए, तो उजमा 1 2 3 एट हो गया। फिर आफ्टर दैट हमारे पास ये है, आफ्टर एड डोमेन नेम मस्ट बी लाइक समथिंग, डोमेन भी इस तरह से आए, जीमेल याहू हॉटमेल जो भी है, लेकिन एट द रेट के बाद है। फिर एट द रेट के बाद हम देख रहे हैं बैक स्लैश है, और उसके आगे एक डॉट, और ये आपका एंड पार्ट है .com.pk.org। अब जब आप इस तरह का कोड रन, अब आपने क्या करना है, वो जो कोड मैंने अभी रन किया था, मैं कोड दिखा देती हूँ, उसमें तो नहीं है, यहीं पे दिखा देती हूँ। ये जो मैं बोल रही थी 2 तरह के मेथड होते हैं, इंडेक्स ऑफ मेथड, वो ये वाला मेथड है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब कोड हमने इतना बना लिया फंक्शन वैलिडेट फॉर्म का, इफ के ईमेल एंटर की है या नहीं की, ये सब चीजें चेक कर ली, उसके बाद हमने बनाया एक वेरिएबल लिया एक्स का, उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स
माई फॉर्म ईमेल डॉट वैल्यू। फिर आप उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल एट को उसकी वेरिएबल का नाम है एट पोजीशन इज इक्वल्स टू एक्स इंडेक्स ऑफ एट द रेट। फिर वेरिएबल की डॉट की पोजीशन, ये एट द रेट की पोजीशन चेक चेक कर रहे थे और अब ये डॉट की पोजीशन चेक कर रहे हैं कि डॉट की पोजीशन जो है वो लास्ट इंडेक्स ऑफ से एक फंक्शन कॉल किया, उस पर डॉट भेजा, वो बताया कि कौन से इंडेक्स के ऊपर वाला डॉट मौजूद है। फिर इफ एट पोजीशन लेस देन वन एट द रेट, अब ये कह रहे हैं कि जो एट द रेट की पोजीशन है वो लेस देन वन नहीं होनी चाहिए, उससे पहले कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, उसकी पोजीशन जीरो पे नहीं आना चाहिए एट द रेट। और डॉट की जो पोजीशन है वो उसकी पोजीशन से 2 पॉइंट जैसे दो करेक्टर्स बाद में आनी चाहिए, 3 करेक्टर्स बाद में आनी चाहिए, या फिर डॉट की पोजीशन में प्लस, जो डॉट की जो जैसे डॉट कॉम है तो डॉट के बाद 3 लफ्ज आते हैं ना, या तो डॉट सब में कॉम आता है तो प्लस टू करके देखा है, 0 1 2 अगर सही है, इसकी लेंथ इतनी बन रही है कि डॉट के बाद 3 वर्ड्स और आ रहे हैं तो सही है, वरना फिर गलत। तो अलर्ट कर दो नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। अब उससे क्या होगा कि इसको अंदाजा लगाने में इसलिए गलती की थी कि जब पहला नाम ही अगर किसी ने बहुत लंबा दे दिया है या उसके अंदर करेक्टर बहुत ज्यादा आ गए या नंबर्स ज्यादा आ गए, तो उससे पहले एट द रेट की ही पोजीशन चेंज हो जाएगी। जब उसकी पोजीशन चेंज होगी तो उसकी वैल्यू डिस्टर्ब होगी, फिर डॉट पोजीशन की वैल्यू डिस्टर्ब होगी, जिस तरह से आपकी पूरी गेम जो है ना वो खराब हो सकती है। तो बजाय इसके पहले एक दफा इस से आप रन करके देखेंगे और आप देखेंगे इससे रन करने में क्या होगा कि कुछ ईमेल एड्रेसेस ये एक्सेप्ट कर लेगा जो कि शॉर्ट नाम के साथ होंगे, जैसे कि ali@gmail.com, ali@yahoo.com, और क्या नाम ali.123@yahoo.com। एक दफा ali@yahoo.com रन करके देखें इस कोड के साथ, एक दफा ali.yahoo, इस तरह से करके कुछ ट्रेनिंग करके रन करके देखें तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आपको करने के जब एक दफा आपका एक कोड रन हो जाए, आप इस वाले कोड को रिमूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक वाले को, और ये वाला कोड रन करेंगे। वेरिएबल बनाएंगे पैटर्न के नाम से, उसके अंदर वाला पूरा पैटर्न वहां से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। फिर आपने लगाया इफ पैटर्न डॉट टेस्ट ईमेल, ईमेल उस फील्ड का नाम है, नॉट इक्वल्स टू अलर्ट नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। बस ये खुद ही ये वाला पैटर्न मैच करेगा तो खुद ही ईमेल वो चेक कर लेगा, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एट पोजिशन डॉट एट पोजिशन एट द रेट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला आपने फंक्शन रिप्लेस कर देना। उसके बाद मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद देखिए मैंने एक नेम डाला और उसके बाद मैंने ये ईमेल एड्रेस डाला गलत। जब मैंने इस पे सबमिट पे क्लिक किया तो लिखा हुआ आ गया नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। अब हम कोड पे वापस आते हैं। बस ये कोड रन करूंगी, उसके बाद आज के लिए एंड करेंगे। कोड दोबारा से समझा देती हूँ। फंक्शन वैलिडेट फॉर्म के अंदर ये शायद ये वाली चीज हाँ लिखी हुई तो होगी मैनुअल में। इसमें क्या किया हमने, जो फॉर्म क्रिएट किया था उस बॉडी के अंदर फॉर्म क्रिएट किया, उसके अंदर दो फील्ड बनाई, एक नेम की और एक ईमेल की। नेम की फील्ड की आईडी का नाम हमने नेम ही रखा था, इसलिए यहाँ पे इसको नेम से कंपेयर करवा रहे हैं। ईमेल की फील्ड की आईडी का नाम ईमेल ही रखा था, इसलिए ईमेल से कंफर्म कंफर्म करेंगे। अलर्ट विंडो जनरेट हो जाएगी अगर जो है ये कंफर्म हो गए। और ये जो भी मैं आपको समझाई थी कि वही वाला रिजिक्स टेक्स्ट मेथड, तो वो वाला मेथड हमने यहाँ इसी के अंदर लिख दिया, फिर हमने ब्रैकेट क्लोज किया इस वाले मेथड का, इसका फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया, और इफ का जो यहाँ से इफ स्टार्ट हुआ था इसका ब्रैकेट क्लोज किया। पर्पल से हाईलाइट हो रहा है और वो येलो से हाईलाइट हो रहा है। यही मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन आप यूज कर रहे हैं या फिर क्या नाम है, या आपकी नोटपैड की विंडो होती है यूज कर रहे हैं तो उससे फायदा नहीं होता, उससे हम जो है ना चीजों को जज नहीं कर पाते। इसमें हम कलर्स की वजह से आसानी से पहचान लेते हैं। फिर बॉडी में वही दो फील्ड क्रिएट किया। अगर मैं आपको बोलूँ आपने कॉन्टेक्ट नंबर भी ऐड करना है और आपने जो है एड्रेस भी ऐड करना है, तो आप जस्ट यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कॉन्टेक्ट डॉट, और ये जैसे इनपुट टाइप लिखा वैसे लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या करना है, टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट सॉरी TEXT टेक्स्ट, उसकी कोई भी आईडी बना दें, आईडी इज इक्वल्स टू कॉन्टेक्ट, ये हो गया।
तो ये लाइन ब्रेक करनी तो लाइन ब्रेक, ठीक। और इसी हिसाब से यहाँ पे एक नया वेरिएबल ऐड हो जाएगा। वेरिएबल, इसका नाम मैंने रख दिया कॉन्टेक्ट इज इक्वल्स टू, ये जो पूरा आपने करा है कंट्रोल सी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। वहां पे हमने क्योंकि नाम रखा है कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे भी आपके पास नाम आ जाएगा कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ये चेंजिंग हो गई। इस चेंजिंग के बाद फिर जिस तरह से ये इफ वाली चेंजिंग चल रही है ना, यही वाली चेंजिंग होगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये एक फील्ड ऐड कर रही हूँ, आपको 4-5 फील्ड्स आप ऐड कर लें। नेम चेक कर लिया, ईमेल चेक कर लिया, हम चेक कर रहे हैं कॉन्टेक्ट वाली फील्ड, कहीं वो फील्ड तो आपके पास एम्प्टी नहीं रह गई है। कंट्रोल एस करा मैंने, इसको स्टॉप करा, अब कंट्रोल एस किया, और अब तो देखें आपके पास एक नई फील्ड भी आ गई। मैं नेम इंटर कर रही हूँ, अब ये गलती चेक नहीं करेगा, अगर आप कॉम की जगह OCM लिख दें तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। हमने पैटर्न में सिर्फ ये डाला है कि डॉट के बाद कोई ना कोई लेटर्स लिखे हुए हैं। कॉन्टेक्ट 0 2 1 3 4 5 6 7, हमने ये कॉन्टेक्ट इंटर कर दिया, तो ये इंटर हो गया, ठीक है। अब दोबारा करते हैं। नाम लिखा मैंने इमरान, ईमेल एड्रेस में भी मैंने इमरान लिख दिया, कॉन्टेक्ट की फील्ड मैंने खाली छोड़ दी, सबमिट करा, तो लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट मस्ट बी फिल्ड आउट। एक दफा में ये एक एरर बताएगा जो कि लास्ट एरर होगा। तो कॉन्टेक्ट अब मैंने फिल कर दिया। कॉन्टेक्ट पे भी मैंने कोई पैटर्न अप्लाई नहीं किया, ईमेल पे पैटर्न अप्लाई किया हुआ है, तो बोल रहे नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस, ओके करा। imran.khan@yahoo.com, अब ये एंटर, सही है। तो ये आपके पास कोड है, हमने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग बस यही वाली कर दी कि ये वाला पैटर्न डाल दिया, वो वाला पैटर्न हटा के, बाकी सब चीजें वही है। इसको ट्राई करें, इसको जितना अच्छा फॉर्मेट दे सकते हैं उसको अच्छा फॉर्मेट दें। अभी तो क्या हो रहा है कि आपके पास डाटा सिर्फ इस तरह से लिखा हुआ है ना, आपके पास अच्छा सा फॉर्म यहाँ बीच में क्रिएट होकर आ जाए, ऊपर हेडिंग डली भी आ जाए, कुछ इस तरह से कर लें। और लैब टैक्स भी आपके पास है, मैं एक दफा उस लैब टैक्स का रिव्यू दे दूँ। क्रिएटिव वेब पे अच्छा, जो भी आप टास्क करें अपने जहन में ये जरूर करते हुए कि हमें एक लैब का प्रोजेक्ट बनाना है, एक बहुत अच्छी सी इंटरेक्टिव वेबसाइट बनानी है, कोई इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बनानी है डेस्कटॉप की। तो उस हिसाब से सब चीज़ें सीखते हुए चलें, आपके अपने माइंड में रहेगा अब हम ये कर रहे हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो सकती है, वाला फंक्शन यहाँ पे यूज हो सकता है। मोस्टली इसके अंदर बटन इवेंट चेंज एक अच्छी शुरू की लैब्स में तो हमने थोड़ा बहुत काम कर लिया ना इस तरह से, लेकिन जब आप आखिरी लैब तक पहुंचे तो आपके पास आपको नेविगेशन भी आनी चाहिए, आपको स्क्रॉल डाउन मेन्यू भी बनाना आना चाहिए, ये सारी चीजें आप कर सकें। क्रिएट अ वेब पेज ऑफ योर चॉइस, व्हेन द पेज लोड्स द मैसेज बॉक्स शुड डिस्प्ले द URL एंड द टाइटल ऑफ द वेब पेज। ये तो बहुत आसानी से मसला नहीं हो, जो आपकी अलर्ट विंडो आ रही होगी उस विंडो के अंदर जो है आप इस तरह की कमांड लगा दें जिससे आपका URL और टाइटल ऑफ द वेब पेज डिस्प्ले हो जाए। क्रिएट एन इंडेक्स पेज, वही यानी कि HTML पेज, टाइम टेबल का एक इंडेक्स पेज बना, जैसे हमने किसी लैब टास्क में आपको टाइम टेबल बनाने को दिए थे ना, वो बोल रहे हैं डायरेक्ट टाइम टेबल ना खुले बल्कि एक पेज खुले, उसके अंदर लाइन से लिखा होगा कि जैसे आपकी है CSE1 CSE2 CSE3 4 5 6 7, लेकिन उसमें सबके लिंक्स, सिर्फ CSE1 लिखा हुआ उसके पीछे कोई लिंक छुपा हुआ है, जैसे आपने क्लिक किया तो वो उस पेज पे ले गया जहाँ पे CSE1 का टाइम टेबल है, फिर CSE2 CSE3 इस तरह से आप 4 का बना लेंगे। क्रिएट एन इंडेक्स पेज टू द टाइम टेबल और यू हैव क्रिएटेड बिफोर, टाइम टेबल्स को आप क्रिएट कर चुके हैं पहले ही, उन्हीं के पेजेस का लिंक या उन्हीं प्रोग्राम्स वो फाइल जहाँ पर भी हैं उसका लिंक उसके अंदर डालते रहें, या फिर एक नया जैसे आप फोल्डर बनाएंगे, पहली फाइल बनाएंगे .html की, उसके अंदर और मजीद फाइल्स क्रिएट करके वही वाले कोड कॉपी कर दें टाइम टेबल्स में, और पहली वाली फाइल के अंदर उन सबके लिंक्स डाल दें। जब HTML कोड रन होगा तो पहली वाली फाइल से रन होगा, वहां पे लाइन से लिखा हुआ आ रहा होगा CSE1 2 3 4 5, उसके बाद क्लिक करते रहेंगे वो सारे टाइम टेबल आपस में ओपन होते रहेंगे। अच्छा, इन्होंने ओपन नहीं करवाया, मतलब जब इंडेक्स का आपका पेज ओपन हो
तो जो आपका पेज है वो काउंट करके बता दे कि इस पेज पे टोटल कितने लिंक्स दिए हैं। तो 4 लिंक्स मैंने ऐड करने को बोला है, तो 4 नंबर 4 वो शो कर देगा। जितने भी आप लोग वेब टैग्स बना रहे हैं, लैब टैग्स बना रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर इस तरह से करें, एच हेडिंग 1 में डाल रहे हैं, कहीं भी डाल रहे हैं कि आपका नाम और CMS ID वहाँ पे प्रिंट हुआ है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये टास्क आपने बनाया है। यदि अगर किसी और ने बनाया तो एटलीस्ट वो उसको एक दफ़ा ओपन करेगा उसमें एडिशन करने के लिए। Create a web page of your choice. When the page loads, a message box should display the date when the web page was last modified. ठीक है, आसान से एक्सप्लेन नहीं कर रही मैं। Create a web page that returns the mouse button press information. बस एक वेब पेज बतानी है, जब भी कोई माउस बटन कोई प्रेस करे तो वो इसकी इंफॉर्मेशन रिटर्न करे, बता दे कि माउस बटन प्रेस्ड। ये असल काम ईमेल साइन अप बना दिया है आपने, बस आपने चेक करने को भी फील्ड है लेफ्ट में एक पासवर्ड आपने क्रिएट करना है। ईमेल चेक द अल्टरनेट ईमेल हैज एट लीस्ट 1 डॉट। चेक द यूजर हैज इनपुटेड करेक्ट नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन टेलीफोन एंड मोबाइल फील्ड। जैसे कि मोबाइल की फील्ड 11 नंबर होते हैं तो उसने 11 ही एंटर करें या नहीं। एक NIC की फील्ड आप बना लें। चेक दैट NIC is filled correctly with डैशेस। NIC के अंदर 2 डैश होते हैं तो दोनों डैश सेम है और टोटल क्वांटिटी कंप्लीट होनी चाहिए। और कौन सी फील्ड हो सकती है आपके फॉर्म के अंदर? बस इतनी काफी है, बाकी तो फिर जब एक दफा आ जाते हैं। हाँ, कुछ रेडियो बटन्स वगैरह जैसे कि आपको फोर्स सिलेक्ट करने हैं तो वो आपने सिलेक्ट करें या नहीं। चेक दैट एटलीस्ट 1 checkbox is checked against कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, सेमिस्टर पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं या सब्जेक्ट पूछ रहे हैं। उसमें 3 चेक बॉक्सेस बना दिएगा, उन तीनों चेक बॉक्स में से एक चेक बॉक्स लाजमी जो है वो होना चाहिए सिलेक्ट। ठीक, तो ये थी हमारी आज की लैब। लैब नंबर 7 थी ये। कहीं कहीं इसमें लैब नंबर 6 मेंशन हुआ आ रहा होगा, वो मैं बाद में जब मैनुअल शेयर करूंगी तो सही कर दूंगी। तो लैब नंबर 7 हमारी आज की कंप्लीट हो गई है। आई होप इस वाली लैब से ना आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी डायनेमिकली। आप पेज पे किस तरह से इनपुट चेंज कर सकते हैं, पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी एफर्ट्स और करेंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैंने आपको बताया था पहले भी कि वो जो W3 स्कूल्स होता है उसके ऊपर कोड डाला करें, तो आपका जितनी चीज़ आप सीख रहे हैं उनको सीखेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप उसको मजीद नेविगेट करेंगे उस वेबसाइट को तो आपको पता चलेगा अच्छा इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। इसको अच्छा सा वो जो फॉर्म अभी सिर्फ साइड पे आ रहा है वो बिल्कुल सेंटर में किस तरह से आएगा, उसका बैकग्राउंड कलर अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड पे पेज पे इमेज भी डाल सकते हैं। तो मुझे एक सिंपल सा फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे वो वेबसाइट ऐसी क्रिएट हुई भी चाहिए कि उसके पीछे बहुत अच्छा सा जो है ना व्यू आ रहा हो। चाहे कोई भी आपने इमेज डाली हुई, हेडिंग बहुत अच्छी डाली, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, राइटिंग वगैरह सब इस तरह की होनी चाहिए कि सबको समझ में आ रहा हो। वो फॉर्म किस पर्पस का है, ऊपर मेन हेडिंग डली हुई है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने CSE के स्टूडेंट्स का डाटा लिया था, गूगल फॉर्म बनाया था, उसमें आप लोगों ने अपने मैट्रिक इंटर और ये सारी चीज़ें डाली थी, तो प्रॉपर ऊपर एक हेडिंग मेंशन थी ना कि किस बैच का है। इस तरह से आपको फॉर्म क्रिएट करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। If you have any query, you can ask freely to me in our WhatsApp group, not a private chat. Okay, thank you. Allah Hafiz.